अगर अगर हमें बस डीएसई ही जाना है तो मैं आईआईटी और आईएसआई क्यों लिखूं? One more thing, I only wrote CUET. So that's why you were just chuckling so long कि अब मैं क्या ही बोलूं। आईएमएफ से भी रिलेटेड कोई एक महान हस्ती थी, इकोनॉमिस्ट सेज It was Geeta Gopinathan. definitely. So hello everyone, this is Navneet Misra from NviNomics and today we have special guest Arvita from DSE. इतना नाम ही काफ़ी होता है किसी के इंट्रोडक्शन के लिए, तो I would like to invite her and please introduce to the audience Arvita. Hello sir, this is Arvita Shukla. I have completed BA Economics Honours from DSE College, Delhi University, and right now I am pursuing Masters in Economics from Delhi School of Economics. And I started preparing for the Masters after taking coaching from you only, and everything has gone good, and I landed up in DSE in first time. That's great. DSE were your first preference, right? Yes, I was only aiming for DSE by giving CUET. Oh my god, that's the real passion and love for the DSE. Like people think कि चलो ये ना हो तो वो हो जाए, वो ना हो तो वहाँ ले लिया, फिर DSE मिलेगा तो जाएंगे. Since beginning you've been passionate about DSE only. Yes, sir. Really, that's really crazy. Before starting, into that preparation portion, we'll like to just ask कि यूजी टाइम में हमें कितना अलग पढ़ना होता है अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन. इफ़ आई आस्क यू, जो CUT के प्रिपरेशन है या एमए एंट्रेंस के प्रिपरेशन, हाउ इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर 3 years ऑफ यूजी सिलेबस? Like UG syllabus is very descriptive. Okay. In that you have to solve long questions, learn theories, models, and all that. So UG preparation requires, I think, more effort. But if you have clear concepts and you just revise the UG portion, then CUET becomes very easy. तो गाइज सी इज ट्राइंग टू सेल कि यूजी को आप हल्के में ना लें. डोंट थिंक कि हमें सेमेस्टर्स स्कोर करने हैं और 8-9 CGPA फोड़ के आना है. आउट ऑफ दोज डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेक योर ओन नोट्स फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. जो भी फैक्ट्स वगैरह होंगे उसके अलग से आप सीट रखें, क्योंकि मैनी टाइम्स जहाँ भी आप क्लास करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो उसके बियॉन्ड भी कुछ प्रोफेसर्स ऐसी चीज़ आपको बताएंगे विच इज़ रेयर टू फाइंड इन द बुक्स बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड. हाँ, नाउ कमिंग टू द योर पोर्सन, you had the graduation from DU itself, so many people would be thinking ki she must have advantages, but I will also tell she has also very good marks in CUT. It was 220 or above, right? Am I right? Yes, sir. So that's definitely decent, not decent, it's very good score. 200 and above is considered to be very good score, और 220 अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाता है. बिकॉज समटाइम्स थिंक कि अरे आप तो DU के थे, ऑलरेडी यू बीन द एडवांटेज ऑफ DU, तो somehow you got. It's not like that. Thankfully she has good score as well. अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के ब्रेकडाउन के, एंड विल डिस्कस अबाउट DSE एज वेल. तो इसमें ब्रॉडरली जब आप CUT के प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अपने तरफ से, जैसे अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में मनी बैंकिंग अलग टॉपिक है और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग टॉपिक है, दो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. तो आप अपने तरफ से सिलेबस को किस तरह से ब्रेक डाउन किए जो आपको थोड़ा ईज हो गया पढ़ने में? I broke down syllabus into microeconomics, macroeconomics, Indian economy, mathematics, and statistics. Okay, great. Okay. And out of the microeconomics, I broke it down into the third semester ka portion and fourth semester ka portion. And then macroeconomics, I broke it down into 3 parts. The part in which you have some models into fourth semester part, and inflation, monetary policy, fiscal policy into the portion of my third semester, and the basic stuff like Keynesian, classical into second semester portion. So she is talking about DU syllabus semester, right? So please mind it, guys. Yeah. The semester she is mentioning, it's about DU syllabus. Once you can cross check, even non-DU people can cross check, syllabus is available. Yeah, go ahead. And in maths, the entire syllabus of CUET that we have is in the first year of maths only in DU. Oh, so I really feel bad यार, जो मैथ्स पूरे जम के पढ़े हैं, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे इस बार मैथ्स में, बेसिक डिफरेंसेस. बट डोंट टेक इट लाइटली. 23 वाला फिर से 25 में आ सकता है. सो इट्स लाइक बिजनेस साइकिल, एक बार वो पीक पे जाएगा फिर नीचे आएगा, एंड इट्स द ट्रेंड ऑफ NTA. जो पोर्शन इन्होंने कम पूछा है वो इस बार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दे दें. इंडियन इकोनॉमी को भी लेके लोग बस बनाए हुए थे, एक मार्केट में डर क्रिएट किए हुए है, तो उसको लेके मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड लेक्चर्स भी डाला. आई होप कि इंडियन इकोनॉमी में आपने एंजॉय किया होगा मेरे लेक्चर्स को.
सर टू बी ऑनेस्ट मैंने इंडियन इकोनॉमी ओनली आपके लेक्चर से पढ़ा था। एंड आई रियली फील लिटिल बैड कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, 5-6 क्वेश्चंस ही थे, जैसा कि भर भर के ये लोग पूछते थे, 15-16 क्वेश्चंस पूछा करते थे। बट लेट्स बी होपफुल कि इस टाइम 15-16 आए तो जो अपने बच्चे हैं थोड़े वो अच्छे करेंगे। एनीवे इकोनॉमिक्स में जब भी आप पढ़ाई करते हो तो वी ऑल्सो टॉक ऑफ बुक्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द नोट्स क्लासेज एंड ऑल। आई शुड एडवाइस एवरीवन कि आप बुक्स को जरूर फॉलो करें, दैट इज़ द प्राइमरी गाइड। भगवान के बाद अगर आपके पास डायरेक्ट कोई एक मीडियम ऑफ वो है कम्युनिकेशन जहाँ से आप नॉलेज लेते हो तो दैट इज़ बुक, देन कम्स योर टीचर एंड ऑल। तो एक बार आपकी मेहरबानी होगी अगर आप अपने तरह से बुक का नाम बता दें। एवरीबडी नोज एवरी बुक, माइक्रो मैक्रो क्या है, व्हाट बुक्स यू फॉलोड एंड व्हाट स्टूडेंट्स शुड फॉलो डेफिनेटली। प्लीज पुट योर ऑन साइट। या स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एचएल आहूजा से सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े थे सिलेबस से रिलेटेड। ओके, तो चलिए एक हो गया आपका एचएल आहूजा। हाँ, नेक्स्ट। मैक्रो के लिए भी एचएल आहूजा थी, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो सिलेबस से रिलेटेड है। पूरी बुक मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, जो सिर्फ सिलेबस में लिखा है उसे पढ़ना है। हाँ, एंड मैथमेटिक्स में मैंने सिट सेटर एंड हैमिंग से प्रैक्टिस की थी एंड एनसीईआरटी मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था अच्छे से। अच्छा, इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने रिग्रेशन में जो 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स वाले होते हैं, उनको थोड़ा स्टडी किया था। एंड स्टैटिस्टिक्स में बेसिक्स पोर्शन जो आपने बताया था वीडियोस में, बस मैंने उनको रेफर किया था एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे। एंड मैंने सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड जो भी पोर्शन मुझे वीक लगते थे उनके। एंड सेम इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने आपके लेक्चर्स पढ़े थे, नोट्स पढ़ा था एंड जो आपने रेफरेंस में रमेश सिंह बताई थी वो थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने रीड कर लिया था। तो ये ऊपर ऊपर करके ही आप इतना अच्छा स्कोर कर लिए। बट आई हैव सीन लिटरली, आई नो पीपल ज्वाइन 2 क्लासेज 3 क्लासेज, लॉट्स ऑफ बुक। जैसे माइक्रो के ही नाम है तो 4-5 बुक के नाम है, दैट ऑलरेडी आई हैव मेड ए वीडियो कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। बट आप आहूजा के ऊपर जा नहीं रहे हो। बट सी हैज एडवांटेजेज ऑफ आई थिंक DU सेमेस्टर्स, जो कि आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे और एग्जाम पर्पज से जो सिलेबस में नीडेड है उसको आपने बुक से किया और बाकी लेक्चर्स, नोट्स और MCQ वगैरह आपने किया। या दैट्स वेरी रिफाइंड स्ट्रेटजी। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, व्हाट अर्विता डिडंट से, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, राइट? तो उनको मैथ को लेकर ज़्यादा दिमाग का वो खर्च नहीं करना पड़ा। बट पीपल हु आर वीक इन मैथ्स डेफिनेटली दे शुड वर्क हार्ड अगर आपको DSE ड्रीम करना है। एम आई राइट? Yes, sir. अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स, यू हैव 1 या 2 वीक तो हो गया होगा। एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि कल कुछ लोग महान हस्तियां आए थे। प्लीज इलेबोरेट दैट। Like it was a 2-day event on 16th and 17th. Okay. I was there on both of the days. Oh, great. On the first day, it was our education minister. It was a DUVC, Yogesh Singh. Okay. And also the economic advisor to Prime Minister's office and our college director and all the renowned economists like Harshvardhan Singh, yes, like Mahendra Dev, yes, all the economists whose lectures we used to read in our UG books. Yes. All those were there on 16th. Okay. On 17th, I was there in college for the entire day. Like in the morning, it was Kaushik Basu section. Great. And then after that, we had a session by some economist. I don't remember his name. 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? मैंने ये पढ़ाया भी था आप लोगों को। He was there, right? NK Singh was there. Yes, NK Singh कमेटी भी हम लोग पढ़ते हैं। Yeah. And IMF से भी रिलेटेड कोई एक महान हस्ती थी, इकोनॉमिस्ट सेज। It was Geeta Gopinathan. She had yes. 2 sessions in our college. Great. The one session in hall with all the faculty, PhD scholars and our students also. And one session specifically dedicated with students only. It was from 5 to 6. And in that, she interacted with all of the students present there and we had the chance to ask questions to her and interact with her. तो ये काफ़ी मज़ा होता है कि मतलब आप स्टार्ट किए और स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक्स में ही आपको ग्रेट इकोनॉमिक्स से मिलने का मौका मिला। दैट्स रियली एन अमेजिंग जर्नी। इट्स ऑल्सो लाइक कि ऐसे आप कॉन्फिडेंस हो गए स्टार्टिंग में, एक जो मोरल बूस्ट होता है थ्रू आउट ऑफ योर 2 years, इट विल बी रियली इंस्पायरिंग।
या अर्विता, नाउ कमिंग टू द लिटिल एकेडमिक्स पार्ट, ये बताइए जो डीएसई आप गए हैं उसका क्या एकेडमिक्स पोर्शन है? एंड देयर इज ऑल्सो र्यूमर कि लगभग 30-40% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो आपके जो सीनियर्स होंगे, नाउ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, योर सीनियर वुड बी इन सेकेंड ईयर, अगर आपको थोड़ा रफ आइडिया हो, टेक योर टाइम 2 to 3 मिनट्स एंड प्लीज़ एक्सप्लेन इन जस्ट स्टेप वाइज कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसे करने से बच्चों को यूजी टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब्जेक्ट्स को अधिक फोकस करना चाहिए, व्हाई देयर इज मोर ड्रॉप आउट्स इन डीएसई? To be honest, in DSE, the curriculum is very rigorous. Okay. Like it demands consistency and discipline. Okay. If you are not consistent, then you will not be able to survive in DSE, because on the very first day when we had orientation, teachers did not mention that the paper is very difficult or many students fail, but they also did not mention that you will enjoy it. You have to be disciplined from day one. Like to mention, on the first day of orientation, I thought that they have given us timetable. Maybe the classes will start from Monday only. Okay. But to our surprise, they said that the class that has been missed because of the orientation will happen in the afternoon only. Okay. Yeah. And it's been 2 weeks since I have got admission, and the teachers are very fast. Like they have just started with the portion, and they said that you need to pass with 30 marks and don't miss any single class, because if you miss the class and the portion gets piled up, so it won't be possible for you. But if you study daily for 2 to 3 hours minimum and revise whatever has been taught in the lectures, do the problem sets and be consistent in your studies, it is very much doable, and it is not that difficult. It is supposed to be, like everybody thinks. But the only need is you have to be consistent. You can't skip a single day of studies. Means इन्होंने देखिए एक कितना irony है. They have also kept 0% attendance, and if you follow that, you will definitely fail. There is no compulsory attendance, right? But if you don't attend the class, there is 100% surety you will fail. Yeah. ओके, सो ये सब ट्रैप है, इन सब ट्रैप में आपको नहीं बचना है, क्योंकि बहुत से लोग जेएनयू जो ज्वाइन करते हैं, मोस्टली जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, कि हमें 0% अटेंडेंस करना है और हमें बस यूपीएससी वगैरह का तैयारी करना. इट्स वेल एंड गुड, बट डीएससी में आप सेमेस्टर पास नहीं करोगे, क्योंकि पेपर्स आर डिफिकल्ट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स में क्या क्या ऑफर किए जाते हैं इन डीएससी? First semester we have microeconomics, mathematics, statistics and econometrics. All the 3 papers are mathematical only. फिर इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके ही पार्ट 2 एडवांस वर्जन में फिर आते हैं. Yeah, next semester में we have 3 compulsory papers and 1 optional paper that we decide. And then third and fourth semester में we have 4 optional papers in each semester. अच्छा, तो एक चीज़ और अब बता दीजिए, जब आप इतना दूर आए तो आपको थोड़ा बहुत जो सीनियर्स आपके अभी जो पास आउट हुए हैं, जस्ट रिसेंट कंप्लीटेड देयर मास्टर्स, एनी रफ आइडिया अबाउट देयर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, वेयर दे आर वर्किंग, व्हाट आर द अमाउंट, सो दैट पीपल शुड नो फ्रॉम यू डायरेक्टली इज द फ्रॉम द डीएसईएन? या प्लीज. Like in the introduction by placement cell, they taught कि last to last year 223 students got placed from our college. Okay. And out of them, the highest package was 34.8 lakh per annum. Okay. And the median and average package were close to 17-18 lakh per annum. That's really great. And majority of the companies are MNCs, and 37% of them hire for data analyst roles specifically, and other roles are risk analyst and marketing, etc. तो द प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज़ डेफिनेटली ऑसम. अभी वाला जो है रिसेंट का, शायद इसका रिकॉर्ड ये लोग अपडेट करके नेक्स्ट सेमेस्टर आई थिंक दे विल अपलोड बिफोर द 25 एडमिशन, बिकॉज अभी बहुत से लोग इंटर्न्स में हैं, बहुत से लोगों की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बिकॉज रिसेंटली जून में ही वो पास आउट हुए हैं. दैट आई कैन अंडरस्टैंड. अभी जुलाई अगस्त चल रहा है. एंड नाउ कमिंग टू द इंटर्नशिप पार्ट, यू मस्ट बी अवेयर कि जैसे ही अब तो खैर यूजीसी के तहत भी एक इंटर्नशिप कंपलसरी है, एंड मोस्टली लोग मैनी पीपल स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ, बट यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको एक इंटर्नशिप लेना है. तो व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्या वहाँ ऑफर किए जाते हैं और क्या सीन है इनका? यहाँ पे अभी तो seniors have said that in the first semester you only focus on academics. Okay. And the placement cell itself invites companies for the internship drive. Achha. After completing our first year, the companies visit our campus, we qualify the round of selection, and we get a decent remuneration with the internship as well.
Yeah, because I Yeah. have also seen कि जैसे being in Delhi always advantageous to get into the ministries and all. MOSPI है, नीति आयोग है, commerce ministry है, Yes. lots of opportunities are there. तो Yeah. internship is not a big deal, as she told कि आपको academics को priority रखना है. फर्स्ट प्रायोरिटी फेल होने से बचें और उसके लिए रेगुलर क्लासेस करनी होगी, कंसिस्टेंसी करनी होगी. पास होना अपने आप में एक अचीवमेंट है डीएससी में. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट अर्विता वाज फोकसिंग कि प्लेसमेंट यहाँ होती है, वी शुडंट बी होपफुल एंड वी शुडंट यू नो द चेज द रूमर्स कि यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो है, हेक्टिक शेड्यूल है. भाई आप इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, स्टैट्स के अगर आप प्रेमी हो तो डेफिनेटली डीएससी इज़ द राइट प्लेस. हाँ, इफ़ यू डोंट लाइक इट, देर आर डिफरेंस. कुछ बच्चों को जैसे थोड़े थियोरेटिकल है पसंद हैं, रिसर्च वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो मैनी ऑफ देम आई सॉ कि डीएससी से मूव करके, जैसे अभी जेएनयू की 4th 5th लिस्ट आ चुकी है, तो दे मूव टू द डीएससी. जिनको थोड़ा वो अपना कूल काम लाइफ चाहिए, जिनको थोड़ा हसल से दूर रहना है, इट्स नथिंग बैड देयर. एकेडमिक्स के लिए डेफिनेटली बोथ आर साउंड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. नाउ अर्विता, इफ़ आई आस्क यू टू बी वेरी फ्रैंक, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से 2-3 प्रोज और 2-3 कॉन्स बता दीजिए दैट इज चैलेंजेस टू बी द पार्ट ऑफ डीएससी इफ समबडी वांट्स. For DSE. Yeah, definitely. Why DSC? So that you have to glamorize for sure. If somebody is so much passionate, you are just crazy कि मुझे बस DSC चाहिए. If somebody has a mindset like this, then why? The pros for DSE are, first of all, the strong alumni network. Okay, that really I appreciate. Yeah, first thing is very good. Alumni network. Yeah, next. Secondly, the curriculum. The curriculum is very much mathematical. It takes care of all your concepts get applied, and you be thorough with your economics. Okay. And along with theory, there are practical portions, and there is a very good opportunity for research. Like we have Center for Development Studies, and I hope when we get into second year, we will get a chance to go there. Okay, so you are allowed to go there. Yeah, I think we will at least visit there. It is in our campus only. And and here we get a lot of interaction with PhD students, and if we build good networks with our professors, they are very good people, so they can help us a lot in research and PhD recommendations. And third thing is the placement at DSE. एंड गुड थिंग यू डिडंट टेल एंड आई वुड लाइक टू ऐड, जो IEG आपने बोला, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब तो वो लोग पास आउट हो गए हैं. व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर दिल्ली फॉर द इंटरव्यू, मैंने 2 बार खुद IAS का इंटरव्यू दिया है. सो IES की ट्रेनिंग IEG में ही होती है. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट एंड समबडी वांट्स टू राइट कि एक बार तो सपना होता है DSE वालों का, क्योंकि मोस्टली DSE वाले ही फोड़ते हैं IES के एग्जाम में भी. तो एक होता है चलो इनसे मिल के थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, पार्लियामेंट में आपकी पोस्टिंग होगी. सो UPSC है, ग्रेड A जॉब है, दैट्स रियली क्रेजी. चलिए अब थोड़ा आपसे मैं पर्सनल चीज़ें जानना चाहूँगा. सो व्हाट आर यू एमिंग फॉर आफ्टर मास्टर्स? After masters, I am aiming for corporates. कॉर्पोरेट्स में क्या क्या रोल दिए जाते हैं, सो दैट कि अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड? कॉर्पोरेट या IT मीन्स नॉट ओनली दिस, देयर आर डिफरेंट रोल्स विच इज असाइंड. यू हैव एनी आइडिया? I am specifically aiming for data analyst or research analyst role. चलिए, इसको लेकर DSE के क्या पहल हैं? What are the initiatives DSE do for this? Like DSE has a dedicated placement cell, and the placement cell conducts training sessions and invites companies for giving the introduction and other things on Saturdays. Like since it's been 2 weeks, on the first Saturday we had a session with EY, and on the second Saturday we had Diamond Jubilee. And we have got our registrations done with the placement cell, and I think they will be coming up with more events and sessions. So they will train you very well, and in that attendance is compulsory, so you have to attend them. So जो different skills होते हैं, what is required for the market? These skills are taught there in the workshop model or by the industrial specialist, right? What is required? Yeah, in the workshop model. They do conduct. Yes, because these days I actually thinking that कि people are just running R सीख लो, Python सीख लो, SQL सीख लो. It's not like that. So many things comes which is required for the market. So you are given those kinds of training. That's really amazing. And now coming to the last thing, usually what happens apart from CUET examination, and if I'm not wrong, you might have also written few others exam. या क्या क्या एग्जाम है और जो बच्चों को लिखना चाहिए, please? They must write IIT JAM exam as well. Okay, IIT JAM. Yeah, and ISI. ISI, okay. Doesn't matter whether they get into or not, but they should definitely prepare. Yeah, if they prepare for IIT JAM and
ISI, they will be very sound in their concepts, their application, and CUET will be very easy for them. अच्छा, अगर हमें बस DSE ही जाना है तो मैं IITI और ISI क्यों लिखूं? One more thing, I only wrote CUET. So that's why you were just chuckling so long कि अब मैं क्या ही बोलूं. No, it's very fact. Many of them, जैसे अगर आपका घर दिल्ली में है, being an woman, it is always to be protective कि मैं घर के पास रहूं और मैं बाहर क्यों जाऊं, and DSE is the best which serve this purpose. तो मैं अदर एग्जाम पे क्यों फोकस करूं? बट गाइज व्हाट सी मेंट कि आपको DSE के फर्स्ट सेमेस्टर्स में इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा. व्हाट सी इज ट्राइंग टू से कि आपको CUT के दौरान ही जो DSE के फर्स्ट सेमेस्टर्स हैं थोड़ा बहुत उसका एक फ्लेवर ले लेना है, राइट. एंड इन दिस वे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM गेट या ISI तो एक थोड़ा बहुत आपके दिमाग में टच रहेगा कि दिस काइंड ऑफ हसल इफ आई गेट तो डेफिनेटली आई कुड easily survive into DSE. And if you are in the comfort zone, even you score 250 plus by reading just theory, because these days I don't know what happened to the CUT, इतना ज़्यादा theoretical हो गया है. We expect कि next year थोड़ा moderate हो. It's I think NTA वाले क्या करते हैं, you see from 22 you might have solved 3-4 years का paper. 22 was damn easy. Then 23 में सीधा टफ हो गया, कट ऑफ वेंट वेरी लो. 24 में फिर से ईजी हो गया, कट ऑफ वेंट हाई. फिर 25 में देयर इज अ हाई चांस कि वो होगा. So there is no definite pattern. So definitely you should follow all the holistic patterns of past 4-5 years, right? Yeah, Arvita, any wise words, final words from your side and what we did not discuss in last 20 minutes? Please go ahead. Final words as an advice to the aspirants that who are aiming for DSE is be consistent in your studies, be thorough with your concept and syllabus. Okay. Don't skip the portion assuming that. What about making notes of syllabus? Making notes of syllabus, I followed the strategy that you recommended in videos. Okay. I took the printout of the syllabus. Oh my god, really I am very happy for this कि syllabus के print out लोग note करके उसको proper follow कर रहे हैं. No, that's really crazy idea. If you are strict, I mean very thorough with this, you are sticking to that only. One day you will feel very cool and calm. अरे मैंने तो पूरा syllabus complete कर लिया है. अदरवाइज क्या होता है, कभी किंसियन पढ़ो, कभी क्लासिकल पढ़ो, कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ो, पता चला एंड में यार कुछ रिवीजन ही नहीं हो रहा है. तो गाइज प्लीज उसको एक बार स्टिक कर लें. 1 या 2 पेज का हमारा वो है सिलेबस है, अपना छोटा सा है. इट लुक्स स्मॉल बट इट्स वेरी लार्ज. इवन इन मैक्रो इट्स रिटन जस्ट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, क्लासिकल किंसियन. बट इन क्लास वी हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम न्यू क्लासिकल टू न्यू किंसियन, एवरीथिंग. एंड हु नोज इफ इट कम्स हैंडी इफ इट एग्जाम इन आस्क्ड, हु नोज. और एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस दूंगा, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग. ग्रेजुएशन के बाद आपका कोर इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है. इवन इन द DSE यू विल बी गिवन टू रीड द पेपर्स, ठीक है, या फिर जो भी पब्लिशिंग आपने इकोनॉमिस्ट वगैरह देखा उनके पेपर्स आपको पढ़ने होंगे. यू वॉन्ट बी गेटिंग टाइम टू रीड द बुक्स. तो बुक्स पढ़ने का टाइम ग्रेजुएशन तक ही है. और चलिए अर्विता जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. आई विश कि आप कम से कम तो 34 लाख का पैकेज जरूर पाएँ, जो कि लास्ट ईयर DSE का हाईएस्ट है. और डेफिनेटली मेक अस प्राउड. डेफिनेटली इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. चलिए, टेक केयर.